Good afternoon, everyone. Good evening, everyone. So this is the second lecture for the topic magnetic field due to current. And today we start with some very important thing. Like suppose we have magnetic field like this, uniform magnetic field. This is my uniform magnetic field. Very, very important concept. Okay. Suppose this is my uniform magnetic field. Now, B is the uniform magnetic field. Now, in this uniform magnetic field, if a charged particle, this is the last part, we have magnetic field. After that, we have magnetic field. Before that, no magnetic field is there. Now, if the charged particle is entering with velocity v, normal to this, if the charged particle is entering like this, okay. So, two questions are examiner can ask you: what is the path? What is the distance of the path traveled by the charged particle inside the magnetic field? And the second thing is time elapsed inside the magnetic field. That means first, the main thing is in this type of situation, first you find out the force. So this is my first finger, which represents the magnetic field. Then central finger represents the velocity of the charged particle, and thumb represent the force. So thumb represent my force. Thumb represent my force. So suppose this is the center. This distance is center, and we can make an arc. So we can make an arc like this, and then it is moving with velocity qv. Yes or no? Whenever it entered into the magnetic field, it moves in a circular track, circle, and then it is moving out from the magnetic field. Yes or no? So almost you can say this is the center. This is the radius r. So how you get the circumference? The circumference is pi r. That is pi into r. That is mv by qb. So what is the time period or time taken, time elapsed inside the magnetic field? Very simple. Arc length by speed. So v cancel. Pi m by qb. If you remember the time period, 2 pi m by qb, what happened in this? The charged particle move like circular motion. So when the charged particle moves like circular motion, so your angle elapses how much? 2 pi. So the time period is this. Here the how much angle it elapsed? This angle how much? Pi. So instead of 2 pi, we write pi. Clear, everyone? Yes, sir. Now, Yes, everyone, sir. is it okay? Now, same question, but if the charged particle is not entering this way, if the charged particle is entering this way, so what happened? It will move like this. I just show you. Instead of this one, suppose the charged particle is entering. The charged particle is entering. Charged particle is entering. Suppose like this way. This way the charged particle entering. Q into V. So see what happened. Magnetic field, velocity of the charged particle, force applied. So in which direction the force applied? Force applied towards the center. Force applied towards the center. So as the force applied towards the center, so you can suppose like this is the center. So if you take this as the arc, radius, you can make a circle. So how the charged particle moving? Charged particle moving like this, and then from here. Is it clear, everyone? So if we want to calculate this distance, if this is theta, this angle is theta, this is 90 minus theta, this angle is 90
minus theta. So this is also 90 minus theta. This is also 90 minus theta. So what about the total angle? Pi minus 2 theta. So what about this angle? 2 pi minus 2 theta. That is pi plus 2 theta. So in simple way, what we can say, see this portion is greater than 2 pi angle, right? This portion is greater than, this portion is greater than 2 pi, as this portion is greater than 2 pi. So we can greater than pi, we can write pi plus 2 pi, pi plus 2 theta. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. As that part is greater than pi, so pi plus 2 theta. So if pi plus 2 theta, that means what about my arc length? Pi plus 2 theta. So that is equals to pi plus 2 theta. So this is pi plus 2 theta is the time elapsed. Yes or no? Yes, sir. Now, same way, if I show you one more thing, suppose this is my magnetic field. Suppose this is my magnetic field, but this time, instead of this one, if we project the particle in this way, charge into velocity, means this angle is theta. So what is the basic difference? See here, the force applied is towards the center, and here, see, this is the magnetic field velocity of the charged particle and force applied. So in that case, the force applied this side. Yes or no? Simply see my thumb. This is my thumb. Understand? See. Yes, sir. So in that case, what happened? How the particle moves? So this is my arc length. So this angle is 90 minus theta. So this is pi minus 2 theta. So basically what happened? See, the simple idea is that if the center is inside the magnetic field, then pi plus 2 theta. If the center is outside the magnetic field, then it is pi minus 2 theta. And if it is like this, force and magnetic velocity of the charged particle are 90 degree, means on the line magnetic field, then semicircular. So in that case, my angle is pi minus 2 theta. So arc length is very simple, pi minus 2 theta, r, that is mv by qb, and time taken or time elapsed inside the magnetic field, that is pi minus 2 theta m by qb. So I think you understand the difference between them, yes or no? It's only about the how the force apply. If the force apply outside the magnetic field, means where the field is not there, so then the arc is less than pi. If it is inside, then pi. If it is exactly on the line, then only pi. Everyone, is it okay? Yes, sir. So if you understand that part, then the next part is, suppose you have a magnetic field line. And a charged particle is introduced. A charged particle is introduced with some velocity. So what happened?
when as well as, so see at this point magnetic field, velocity of the charged particle, force, so force apply in this direction, force apply in this direction, and velocity of the charged particle, so it try to make a circular arc. It's not a straight line, it's a circular arc like this. And now as no magnetic field is there, it's ejected with some velocity. So if you see, this is my actual line. The charged particle try to go in this side. As it entering into the magnetic field, it move in this side. So I can say this angle is theta, yes or no? Or this is my angle theta, yes or no? Yes, sir. So the charged particle try or willing to go in this side, but as the charged particle is coming and when it entering into the magnetic field, due to magnetic field, we know it move in a circular track. So it move in a circular arc, because after that, if the magnetic field is there, then circle, then come back. But if it, as it is less than the radius, so here the magnetic field is end, so it will eject tangentially. So this is the actual path and this is the diverted part. This angle is called the angle of deviation. In जिधर जाने वाला था और जिधर गया. This angle is called the angle of deviation. So if this is my D, that is the thickness of this wire, this magnetic field, which is half of the radius, find theta. I give you some time. See, the answer is, suppose this is the radius, and up to that is also radius because it's in the circular track. Okay, so arc होगा. Radius type का होगा. So this is R. This one is also R. This angle is theta. This is 90 minus theta. This angle is theta. So this angle is theta. So this is the width of the magnetic field. So we can say sine theta, that is perpendicular by the hypotenuse. So d by r. D is r by 2. So r by 2 by r, that is 1 by 2. Theta is 30 dp. Okay, everyone? Yes, sir. Now the next part. Next is that next वाला जो topic है, हालांकि ये बाद में है, if you see book, so that is at least at the end you have, okay, but this is very related to radius of the track, time period, and all these things, as that is very related to this one. So it's better we first see that part. So the topic is cyclotron. The topic is cyclotron. So what is cyclotron? Cyclotron. So what is cyclotron? Cyclotron is a device by using which we can accelerate charged particles. इसलिए इसको particle accelerator भी कहा जाता है. इसको particle accelerator भी कहा जाता है. तो cyclotron और particle accelerator. Obviously समझ रहे हो कि by using this device we accelerate charged particle. ठीक है? तो कैसा टाइप का चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक्सेप्ट एनी चार्ज पार्टिकल, सॉरी नॉट पॉजिटिव, एनी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव, but except electron. Why except electron? Because if in electron, because what happens in very high speed, अगर हम इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड में मूव कराते हैं, because of the mass of electron is very less, and we know if we increase the speed, mass is also increased.
सो इलेक्ट्रॉन का मास अगर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, सो इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी। आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। मानो तुम्हारा पास एक मच्छर है, मच्छर को अगर 2 ग्राम वजन बढ़ जाएगा तो मच्छर उड़ ही नहीं पाएगा, मच्छर अपना प्रॉपर्टी खो देगा। लेकिन हाथी को हम अगर 10 किलो वजन बढ़ा देंगे तो हाथी को वो खुशी होगा, वो एकदम हिलते डुलते जाएगा। तो सिमिलरली प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। सो इसीलिए हम लोग प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सबको पार्टिकल एक्सीलरेटर से एक्सीलरेट करते हैं, बट नॉट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का मास इनॉर्मसली बढ़ जाने के कारण अपना वो इलेक्ट्रॉन का जो कैरेक्टर है वो नहीं रख पाता है। So that's why we are not try to accelerate electron by using that particle accelerator. अब हम लोग इसमें क्या लेते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें 2 डी शेप का चेम्बर होता है। डी शेप का चेम्बर मतलब अगर तुम लोग कभी कहीं पे वो बड़ा बड़ा राउंड शेप टिफिन बॉक्स देखा होगा, ऐसे गोल टिफिन बॉक्स, उसको अगर हम बीच में से काट देता है, द शेप इज लुक लाइक दिस, है ना, डी शेप। तो 2 सेमी सर्कुलर डिस्क मतलब आधा और सर्कल, आधा और सर्कल, अब बीच में खाली जगह है, तो इसके अंदर हम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इस 2D शेप को ऐसे करके आसपास रखते हैं, थोड़ा सा गैप होता है, देखो थोड़ा सा गैप है, ऐसे करके रखते हैं, और इसका ऊपर से एक मैग्नेट देते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे से एक मैग्नेट देता है साउथ पोल। So we know the outside the magnet, the direction of magnetic field from north pole to south pole. तो magnetic field ऐसे ऐसे vertically इस D के ऊपर आता है, ऐसे ऐसे, और इसके अंदर में हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनिशियली नो स्पीड ऑन द चार्ज पार्टिकल, और ये जो 2 D है इसको हम लोग एक ऑल्टरनेटर से कनेक्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटर? ऑल्टरनेटर मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल इट चेंज इट्स पोटेंशियल। मतलब बुक सब पे गलत लिखा है, बुक सब में लिखा है ऐसे करके एसी, पर हम लोग एसी नहीं लेता, क्योंकि एसी में ऐसे करके वोल्टेज अप एंड डाउन होता है। हम लोग जो अल्टरनेटर लेता है वो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से लेके हाफ सर्कल तक इसका पॉजिटिव पोलैरिटी है, फिर नेक्स्ट हाफ सर्कल तक पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, लेकिन वोल्टेज वो मेंटेन रखेगा। मानो 10 वोल्ट मेंटेन किया है, सो ऐसे करके रहेगा। तो ये 0 to T एक कंप्लीट हुआ, ये हाफ टाइम पीरियड, ये मानो 10 वोल्ट है, फिर आधा टाइम के बाद जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग उसमें एक टाइम मेंटेन कर देते हैं कि इतना टाइम के लिए हाफ रहेगा, नेक्स्ट फिर वो पोलैरिटी अपना चेंज कर देता है। तो मान लो मेरे पास 2 D है, ये D1 है, ये D2 है। फॉर द फर्स्ट हाफ जब मैंने ये चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया और जब मैंने स्विच ऑन किया, सपोज ये जो D1 है ये नेगेटिव चार्ज हुआ और D2 जो है ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो ये जो नेगेटिव प्लेट है इस चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, और इधर का जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये इसको रिपेल करेगा। तो बीच का जो चार्ज पार्टिकल है ये इसको इधर धक्का दिया और ये इसको अट्रैक्ट किया, तो मतलब ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। So in presence of magnetic field, if a charge particle moving with some velocity, it start moving circular motion. तो ये सर्कल होके जब हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, now this D1 initially which is negative, now this D1 become positive, और ये जो D2 था which is initially positive now become negative. तो after half circle अब ये इसको धक्का देगा और ये इसको पुल करेगा, तो ये फिर एक थ्रस्ट मिला। तो थ्रस्ट मिला मतलब वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया, फिर ये नेक्स्ट डी में एंटर किया विद सम वेलोसिटी, और दैट वेलोसिटी इज लार्ज देन द प्रीवियस वन। सो रेडियस का फॉर्मूला हमें मालूम है mv/qb। सो स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे आएगा फिर ये उल्टा हो जाएगा। अब ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, फिर इसको धक्का दिया, तो ऐसे 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 करके उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, एज वेल एज द पथ। यही हम इसको पूरा ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 सेमी सर्कुलर डिस्क ड्रॉ करेंगे। हम लोग थोड़ा सा कार्व कर देते हैं ताकि यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ऐसे करके मेरा 2 सेमी सर्कुलर डिस्क होगा, ये है हाफ डिस्क और ये बीच में स्पेस है अंदर का,
नाउ इन दिस ये दोनों डी के बीच में हम लोग एक ऐसे करके एक्सीलरेटर लगा देंगे और इसके ठीक ऊपर में सपोज दिस इज D1 एंड दिस इज D2 और इसके ऊपर में हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल और इसका ठीक नीचे हम लोग एक और डी लगाएंगे, सपोज दिस इज साउथ पोल। सर हम लोग दोनों डिस्क के बीच में वो क्या कनेक्ट किया है? एक वो बोला ना एक्सीलरेटर, जैसे ऐसे करके ये हाफ के लिए मानो यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट, फिर -10 वोल्ट, फिर +10 वोल्ट, फिर -10 वोल्ट। जैसे हम लोग बैटरी को इन्वर्ट दिखाते हैं ऐसे करके, ऑल्टरनेटर मतलब क्योंकि ये चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, इसको ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक है, ये भी एक वोल्टेज है पर ये कांस्टेंट नहीं है। ये जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट में एसी फ्लक्चुएट होते रहता है, तो ये भी हाफ इंटरवल के बाद इसका पोलरिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, इसलिए इसको बोला जाता है ऑल्टरनेटर। हाँ, ऑल्टर मतलब क्या, उलट जाना, चेंज होना, इसी से ये आया है ऑल्टरनेटिंग, मतलब चेंज हो गया। और ध्यान से देखो, मैंने ऐसे करके डी रखा है और ऊपर से एक मैग्नेट रखा है, तो ये जो डीज है ये ऐसे करके है बेसिकली। ठीक है, और इसके ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको वर्टिकली कट कर रहा है। ऐसे करके वर्टिकली वो कट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो। हम लोग इसमें एक चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया, हम लोग यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया। सो फॉर द फर्स्ट हाफ हम लोगों ने क्या माना, सपोज D1 इज नेगेटिवली चार्ज एंड D2 इज पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि देखो जब भी हम लोग किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, किसी चीज अगर प्लस से कनेक्टेड है उसका नेक्स्ट माइनस से कनेक्टेड है, तो ये फर्स्ट हाफ में नेगेटिव है, ये फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव होगा तभी तो कंप्लीट होगा ना सर्कल। तो अब देखो ये जो डी है, ये डी क्या कर रहा है कि इसको अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज and this one is negatively charged, this is negatively charged, so this charge particle is attracted by D1 and repelled by D2। तो ये इसको धक्का दे रहा और ये इसको टान रहा है, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं बोलो? हाँ सर, तो सर क्या दोनों डिस्क चिपक जाएगा? नहीं, डिस्क नहीं, चार्ज, डिस्क तो फिक्स है, चार्ज पार्टिकल अब ये क्या बीच में है, तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो ये वाला डिस्क इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर रहा है और ये वाला डिस्क इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये किधर जाएगा, इधर ही जाएगा ना। हाँ सर, तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। तो ये हाफ ऐसे करके घूम के यहाँ पे आया। जब ये यहाँ पे आया, आधा घूम लिया, देखो आधा डिस्क में घूमा, घूम के जब यहाँ पे आया, ये ऑल्टरनेटर क्या करेगा, ऐसे करके टाइम सेट होगा कि ये ठीक यहाँ से जब हाफ में आएगा, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। तो अब दे रहा है। हेलो, Yes, sir. सुनाई दे रहा है? हाँ सर, Yes, sir. तो देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, mv/q। तो देखो मेरा जितना वेलोसिटी बढ़ेगा, मेरा पाथ बड़ा होगा, तो यहाँ पे आया, ये थ्रस्ट दिया, ये अट्रैक्ट किया, स्पीड बढ़ा, फिर आधा, फिर ये इस डिस्क में एंटर किया, यहाँ तक आया, फिर अब पोलैरिटी चेंज हो गया, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और फिर ये इसको अट्रैक्ट किया, ये इसको रिपेल किया,
और ये बार बार जब ये हाफ ट्रेवल करके आएगा तभी होगा, क्योंकि जहां ये हाफ ट्रेवल करके आया यहाँ पे तो इसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ गया मतलब अब ये ज्यादा स्पीड लेके वो नेक्स्ट डिस्क में एंटर करेगा। तो फिर इसका देखो ट्रैक बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इसका ट्रैक ये अभी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, फिर धक्का खाया, फिर ये बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे आया, फिर पोलैरिटी चेंज हो गया, फिर रेडियस बढ़ा, स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया मतलब रेडियस बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे आया। ऐसे करके वो धीरे 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 ऐसे गोल 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 ये घूम रहा है। घूमते घूमते जब ये एकदम लास्ट में मानो इसके साथ कॉलिजन होने रहेगा डिस्क के साथ, तो यहाँ पे एक छोटा सा होल होगा, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो इनिशियली चार्ज पार्टिकल का कोई स्पीड नहीं था, जहां मैंने स्विच ऑन किया ये धीरे धीरे गोल 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 घूमते रहा और इसका स्पीड बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। लास्ट में जब ये डिस्क के साथ कॉलिजन होगा, ठीक डिस्क के साथ कॉलिजन होने से पहले इस साइड में छोटा सा होल रहेगा, उससे वो हाई स्पीड में आ जाएगा। ये सर नो? यस सर। तो इससे हमें ये जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ये वेरी हाई स्पीड काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इससे ऐसे करके क्या कर सकता हूँ, मैं इस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर सकता हूँ। और इसके लिए जो मेरा रेडियस क्या होगा, ट्रैक क्या होगा, ये सब हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बता चुका है कि याद करो। सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force is balancing the magnetic force. So mv square by radius of the track, that is qvb, because they all are 90 degree to each other. R is mv by qb, which we already mentioned you in the first class. याद आ रहा है? So when you get the radius, you can find out the time period also. 2 pi r by speed, that is 2 pi m by qb. जब मुझे time period मिला, frequency 1 by time period qb by 2 pi m. When we get the frequency, next what we have to find out, we can find out the angular frequency. याद करो 2 pi frequency, that is qb by m, that is my angular frequency. And when we get the angular frequency, we can get the kinetic energy maximum also. हम लोग जो पहले रेडियस निकालता था वो सिर्फ रेडियस होता था, यहाँ पे जो रेडियस है वो डिपेंड करेगा मेरा डिस्क कितना बड़ा है। तो ये जो रेडियस है दैट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। ये समझो, क्योंकि डिस्क से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिस्क से ज्यादा होगा तो ये दीवार में जाके टकरा जाएगा, और उतना हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल अगर आके डिस्क में टकराएगा तो वहां पे क्या होगा कि एकदम गर्म हो जाएगा वो, या इवन वो मेल्ट भी हो जाएगा। समझ में आया मेरे बात? हाँ सर। तो अगर मुझे काइनेटिक, अच्छा, तो इसीलिए कभी कभी इस रेडियस को हाफ ऑफ द डायमीटर भी बोलता है, डायमीटर ऑफ द डिस्क। सो हम यहाँ से V मैक्स निकाल सकता है। V मैक्स कितना हो जाएगा, QBR by m। तो ये काइनेटिक एनर्जी भी लास्ट टाइम हम लोग निकाला था, हाफ mv स्क्वायर, खाली मैक्सिमम बात नहीं बोला था। सो QBR by m, so what we have, q square b square r square by 2m। सिर्फ जो चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे है, हम लोग देखो लास्ट टाइम सिर्फ टाइम पीरियड निकाला था, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या कह सकता है, दे कैन आस्क यू कि टाइम स्पेंड इन 1D। तो टाइम स्पेंड इन 1D, 1D मतलब दोनों में से कोई एक डी में। देखो हाँ, ये दोनों क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो इस टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा ना, टाइम पीरियड दोनों मिला के हुआ तो हाफ टाइम पीरियड होगा ना, टाइम स्पेंड इन 1D। ये सुन लो। यस सर। আরেকবার বলবা স্যার কি বললা? আরে দুটো মিলিয়ে একটা কমপ্লিট টাইম পিরিয়ড হচ্ছে, তো একটা ডিস্কে কতক্ষণ টাইম কাটবে, তো হাফ অফ দ্যাট টাইম পিরিয়ড, সো হাফ হবে। so that is why time spent in 1D, half of the time period। इसको हाफ कर दो, pi m by qb, है ना, है ना। देखो ये एकदम आसान चीज है। कभी कभी बोलेगा कि टाइम स्पेंड इन 1D इज 0.01 सेकेंड, सो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, 0.02 सेकेंड। तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1 by टाइम
1 by 0.02 दैट मींस 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है हमारा हाउस होल्ड सर्किट जो है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देता है, तुम लोगों को मालूम ही है, देता है ना। एसी सर्किट में हम लोग जो घर पे यूज करता है 50 हर्ट्ज, तो हम लोग 50 हर्ट्ज यहाँ पे लगा सकते हैं। डिपेंड करता है क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे ऑन दैट बेसिस। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो इट्स अ सिंपल थिंग। ये देखो ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन देता है कि साइक्लोट्रॉन का ड्रॉ, दिस डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है, इसके बारे में इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना। तो वर्किंग प्रिंसिपल में कुछ नहीं है कि वी इंट्रोड्यूस ए चार्ज पार्टिकल and we connect a alternator which after every half interval change its polarity. Let for the first half when it enter, let D1 is negative charge and D2 is positively charged. So D1 attract the charge particle and D2 repel the charge particle so that the charge particle achieve a velocity after travel half circular path. Now change the polarity. Now D1 become positive and D2 become negative. Now D1 repelling the charge particle and D2 attract the charge particle. So because of that, an extra thrust apply on the charge particle. So its speed increase or velocity increase. As the speed increase, the path become bigger. So now it enter into the second disk with the higher speed. So the path is bigger. Again, when it complete the second D, again the time it change the polarity. Now the D1 is negatively charged and D2 is positively charged. Now D2 repel the charge particle and D1 attract the charge particle. So again the velocity increase and the process is continuous. So the charge particle every half interval, its velocity increase, its track, its radius increase, and finally it coming out with a very small space which is called orifice with a maximum kinetic energy. Done? और ये सब तो तुम लोगों को पहले ही मैंने बता चुका था, फिर मैंने एक बार रिकैप करवाया। सो दिस इज साइक्लोट्रॉन। इसका जो चेंबर है इसमें हम लोग डिपेंड करता है कि अच्छा से फ्लोट करके मूव करे। सो अगर प्रोटॉन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस लेते हैं, अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं तो हीलियम गैस लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें लेता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, हाई स्पीड पे इलेक्ट्रॉन लूज इट्स प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी? अपना खुद का प्रॉपर्टी लूज कर देता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को कभी पार्टिकल एक्सीलरेटर में एक्सीलरेट नहीं करते। तुमको ये क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाई वी डज नॉट यूज इलेक्ट्रॉन इन द पार्टिकल एक्सीलरेटर? बिकॉज फॉर इलेक्ट्रॉन द मास इज वेरी लेस, एट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन लूज इट्स ओन प्रॉपर्टी, सो वी नॉट यूज इलेक्ट्रॉन इन द पार्टिकल एक्सीलरेटर। क्लियर? Yes, sir. तो इसका काम क्या है? जैसे याद है तुम लोगों को 5-6 साल पहले एक LHC लार्ज हाइड्रोजन कोलिजन हुआ था, वहां पे बहुत स्पीड से हाई स्पीड में दो प्रोटॉन्स को, बहुत सारा प्रोटॉन को एक साथ घुमा के वो उसको कोलिजन करवाया गया था और उससे बिग बैंग थ्योरी को प्रूफ किया गया था। तो बहुत सारा चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड में रोटेट करने का जो प्रोसेस है यही है। तो हम लोग ऐसे किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा स्पीड में घुमा के उसको कोलिजन करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मानो मुझे कहीं पे कोई एक चार्ज पार्टिकल को कोलिजन करवाना है, जैसे हाइड्रोजन बम बनाना पड़ता है। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि प्रोटॉन को हम लोग हाई स्पीड में प्रोटॉन को हम लोग कोलिजन करवाते हैं। तो कोलिजन करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं। तो टेम्परेचर देना मतलब मेटल गल जाएगा, तो उससे अच्छा है अगर हम प्रोटॉन्स को बहुत स्पीड में घुमा के आपस में कोलिजन करवा दे, तो भी वो हाइड्रोजन बम बन सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे हम हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा डिजास्टर होता है। ठीक है, तुम लोग बोलोगे सर खाली डिजास्टर वाला काम करवाता है। सो यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। फिर जैसे वो ट्रीटमेंट होता है ना, चार्ज पार्टिकल को हम लेके कोई जैसे वो कैंसर वगैरह का जैसे ट्रीटमेंट होता है, रे वगैरह उसमें दिया जाता है, केमोथेरापी। तो हम लोग कोई रे को हाई स्पीड करके उसको वहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे ट्रीटमेंट करवा के केमोथेरापी वगैरह भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू वन न्यूमेरिकल। Now I just want to show you one numerical related to that. देखो न्यूमेरिकल एकदम आसान रहेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स होता है इससे, तो जनरली इसके ऊपर न्यूमेरिकल देता नहीं है। ठीक है, देता भी है तो एकदम either they give you the proper calculation, otherwise तो कुछ नहीं कर सकते। You have to calculate this. We don't have any alternative way.
कैलकुलेशन के लिए। देखो, आई जस्ट वांट टू रीड वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गिवन हियर, एसएल अरोड़ा का एग्जांपल 52, एग्जांपल 52 एसएल अरोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन इज साइक्लोट्रॉन ऑसिलरेटिंग फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन ऑसिलरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब तुम्हें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। A cyclone oscillating frequency इतना, what should be the magnetic field for a accelerating a proton? किसको हम कर रहे हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है। If the radius of the D's, radius of the D's, ये जो है radius of the D's है, कितना बोला है? 60 सेंटीमीटर। समझ में आया? रेडियस ऑफ द डीज मतलब ये 2 डी है, इसलिए डीज बोला जाता है। रेडियस ऑफ द डीज 60 सेंटीमीटर। What is the kinetic energy? What is the kinetic energy? तुम्हें इसका मतलब 2 चीज निकालना है, एक मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी। देखो, हमें और कुछ याद नहीं है, टाइम पीरियड मूल जवानी याद है, 2 पाई m by qb। So frequency, that is 1 by time period, qb by 2 pi m। Now frequency is given 10 mega, 10 to the power 6, ये है megahertz, that is equals to charge of proton we know 1.6 into 10 to the power minus 19। magnetic field we don't know, we have to calculate। 2 pi का value है 3.14 and mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। so देखो, everything you know except magnetic field, yes or no? Yes, sir. So you can easily calculate, and after calculation the value is 0.66 Tesla। so you can easily calculate this value, although the calculation is little bit tough, but you can calculate this। so when you get the magnetic field, next kinetic energy, kinetic energy का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ नहीं याद है तो ये याद रखो। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? एम वी बाई क्यू बी, वी ऑल नो दैट। so half m qb r by m whole square, which means q square b square r square by 2m is the kinetic energy। yes or no? so q is 1.6 into 10 to the power minus 19 का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.66 का स्क्वायर, रेडियस इज 0.6 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को वी कन्वर्ट इनटू मीटर, बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 to the power minus 27। that value is in joule, but जो बुक में देखोगे, the book में the value is not given in joule, the value is given in electrovolt। so how you convert this joule into electrovolt? whenever you want to convert joule into electrovolt, divided by 1.6 into 10 to the power minus 19, मतलब charge of electron, and if you convert electrovolt into joule, multiply that value into charge of electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19, you convert into joule। तो इस जूल को मुझे अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जूल को हटाना है, यहाँ पे 1.6 into 10 to the power minus 19 लिखना है, then I convert it into electrovolt, and after calculating the value is written here 7.4 mega electrovolt, mega माने 10 to the power 6। so yes, the calculation is little bit tough, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम लोगों का प्रॉब्लम है, but you can understand कि how you solve it। फॉर्मूला मालूम है, अगर नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है, तो सबको एक करके इकट्ठा करके वैल्यू वगैरह लिख के छोड़ दो ना, एटलीस्ट यू गेट सम मार्क्स, ओके। बट यू अंडरस्टैंड ना कि how you find out the magnetic kinetic energy, how you find out the magnetic field and all, yes or no? Yes, sir. so ये है मेरा साइक्लोट्रॉन, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसका डिराइवेशन, इसका डायग्राम एंड ऑल दिस, ठीक है। दिखने में भी बहुत सुंदर हुआ है। डन एवरीवन? इज इट ओके? Yes, sir. so now एक छोटा सा और पार्ट कराना है, that is
Lorentz force, Lorent', Lorentz force, इसको बोला जाता है लॉरेंटेज फोर्स भी बोला जाता है या लॉरेंस फोर्स। सो ये लॉरेंस फोर्स क्या है? देखो अभी तक हम लोग इस चार्ज पार्टिकल के बारे में जो भी पढ़ा, मींस यू इंट्रोड्यूस द चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। तो लॉरेंस ने फर्स्ट बोला कि व्हाट हैपेंड इफ वी इंट्रोड्यूस अ चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, if we introduce a charge particle in presence of both electric and magnetic field, force applied on the charge particle is the vector sum of electric force and magnetic force. देखो वेरी सिंपल बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दोनों के प्रेजेंस में करेगा तो दोनों फोर्स लगेगा। वेरी सिंपल बात है, इसमें सोचने का क्या है? सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू इंट्रोड्यूस अ चार्ज पार्टिकल, force applied on the charge particle is the vector sum of both the force applied on the charge particle due to electric force, electric field as well as the magnetic field. So इसको हम लोग इसलिए QE plus QV cross B लिखता है। अब देखो यहाँ पे दो केस है। केस वन इज if electric field, magnetic field and velocity of the charge particle are collinear. What do you mean by collinear? What do you mean by collinear? সেম প্লেনে স্যার থাকবে সবগুলো। Yes, collinear matlab they are in the same line. Velocity of the charge particle, electric field and magnetic field. So what is the angle between velocity of the charge particle and magnetic field? 0 degree. So magnetic force, that is QVB sin 0 degree is 0. तो magnetic force 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। सो ये एक एक्सीलरेशन जनरेट करेगा QE by m. So charge particle move in a straight line with not constant velocity, with non-uniform velocity. इसके बाद लिखा गया, so then charge particle move in a straight line with non-uniform motion. Is it okay, everyone? Because velocity is not constant, so non-uniform motion. Is it clear, everyone? Everyone, is it okay? Yes, sir. अब देखो, यही अगर मैं केस 2, अगर if electric field, magnetic field and velocity of the charge particle are orthogonal. What do you mean by orthogonal? Normal to each other. Perpendicular to each other, normal to each other. If velocity, electric field, magnetic field and velocity of the charge particle are orthogonal such that electric force balance magnetic force, then the charge particle move in a straight line without any deflection. इस पूरा का मतलब क्या है? पूरा लाइन का मैं देखो धीरे धीरे समझाता हूं। ये मेरा मानो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ पे मेरा प्लस चार्ज है, यहाँ पे मेरा माइनस चार्ज है। सो आई कैन इजीली जनरेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड positive to negative, and in presence of this
in presence of this electric and magnetic field, if we introduce a, sorry, in presence of this electric field, if you introduce a magnetic field, which is into the page, ध्यान से समझो हाँ. So in presence of this magnetic field and electric field, देखो ये green वाला, ये पेन को देखो, ये green वाला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रेड वाला मेरा सॉरी, ये ग्रीन वाला मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और ये रेड वाला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये एक दूसरे से क्या हो गया, ऐसा. सो ऐसा हो गया का क्या मतलब है, दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, यस और नो, ऐसे करके है, दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर. अब मैं इस दोनों के बीच में I can project the charge particle in this direction, I can project the charge particle in this direction. Now which one is the right answer? देखो अगर मैं इधर प्रोजेक्ट करूंगा, इधर से मेरा मैग्नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, and if we use the Fleming's left hand rule, see if we use the Fleming's left hand rule, this is my magnetic field, this is my velocity of the charge particle, so my magnetic force also apply downward. तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगा, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री टू ईच अदर है, और इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन यहाँ पे बोला है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑर्थोगोनल सच दैट, ऐसे करके करो कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस ईच अदर. तो दे आर नॉट बैलेंसिंग हियर, दे आर नॉट बैलेंसिंग हियर. As they are not balancing here, ये नहीं होगा. इधर से अगर हम, अब अगर हम इसको इधर से भेजेंगे तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ गया और ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा वेलोसिटी, ये मेरा फोर्स, तो मेरा मैग्नेटिक फोर्स किधर गया, ऊपर की तरफ. अब देखो मेरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आर ऑर्थोगोनल सच दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड्स को बैलेंस कर रहा है. अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करे, मतलब दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए, सो नेट फोर्स अप्लाई 0, सो चार्ज पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, देन द चार्ज पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब वो सीधा जाएगा. और अगर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड is equals to magnetic field, electric force is equals to magnetic force, yes or no? अरे ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा तभी तो स्ट्रेट जाएगा ना. Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, QE, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QVB, बिकॉज दे ऑल आर 90 डिग्री टू ईच अदर. सो वेलोसिटी क्या हो गया, E/B. सो अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल. ठीक है. और यहाँ पे एक छोटा सा चीज, हम लोग ऐसे करके बार बार चेक करने से, पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे करके बार बार चेक करने से अच्छा है. पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग ये याद रख सकता है कि डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज E क्रॉस B. देखो E क्रॉस B का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, -J, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज हो गया -K, तो -J -K क्या होता है, I. देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग कौन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल I के डायरेक्शन में. तो मेरा I का डायरेक्शन जो है कैसे मिलेगा, E क्रॉस B. या हमेशा याद रखना कि वेलोसिटी कौन डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेगा, हम लोग चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमेशा प्रोजेक्ट करेंगे E क्रॉस B के डायरेक्शन में. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो यहां तक तुम्हारा लॉरेंस फोर्स है, लॉरेंस ने ये दोनों केस दिया था. अब जो पोर्शन है वो लॉरेंस का नहीं है, वो मेरा है. ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चंस दे सकता है कि वो ये है कि हम लोगों ने मान लिया दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट सच दैट दे आर बैलेंसिंग ईच अदर. अगर बैलेंस ना हो, मतलब इफ दिस टू फोर्सेस आर नॉट इक्वल, दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन बट नॉट बैलेंस. तो नॉट बैलेंस में दो चीज हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज चार्ज कैंसिल आउट. सो आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स, तो ये दोनों में नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा। और जब पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमिनेटर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो मेरा स्पीड बढ़ेगा। और हमें मालूम है रेडियस इज mv/qb, मेरा स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस बड़ा होगा। तो अगर मेरा बड़ा रेडियस है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। और यही अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम बड़ा करेंगे तो देखो वेलोसिटी छोटा हो जाएगा, तो वेलोसिटी छोटा हो जाएगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा। अगर मुझे ऐसे करके 3 डिफरेंट दिया तो स्ट्रेट वाला गया, मतलब इक्वल, जो बड़ा रेडियस है वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स, और जो छोटा रेडियस है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके एवरीवन, ये बात समझे? ये दोनों बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने दिया है, ठीक है? इज इट ओके? Yes, sir. सो यही तक है आज का सफर। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।